अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। वो बस है कि पहले तो एक ओवरव्यू, ठीक है, विच इज मोर लाइक ओ लेवल्स, ठीक है। फॉर दिस, एक चीज है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जो होती है ना, दैट्स द टेंडेंसी फॉर एन एटम टू, अच्छा, इट्स द टेंडेंसी फॉर एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम। अच्छा, ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो डिफरेंट एटम्स, ये हमने वी डिड आयनाइजेशन एनर्जीज व्हिच वाज काइंड ऑफ सिमिलर, ठीक है, कि some atoms attract electrons more than others, ठीक है। Now the general trend of, like, if this is your periodic table, so the general trend is that when you move to the right, the tendency to gain electron increases, ठीक है, so they become more electronegative. अच्छा, क्यों ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाते हैं? बिकॉज when you move to the right, you have more protons in the nucleus, same shielding, ठीक है, which we had talked about earlier. The atomic radius decreases slightly, very slightly. So atomic radius slightly decreases. So that's why there's going to be more attraction for electrons. तो ionization energy बढ़ती थी ना, तो electronegativity also increases. That the atom attracts electrons more. ठीक है, you've got more protons. The atoms have the same number of shells, and the radius slightly decreases. ठीक है, when you move to the right. ये clear है? Clear है? Yes or no? Is this clear? Yes, sir. अच्छा, और electronegativity also increases up the upper group. ठीक है, तो यहाँ पे भी ना electronegativity, uh, the atoms become more they become more electronegative. And the reason is that smaller atoms, they're less shielded, they're going to be attracting electrons more. ठीक है, the electrons will be closer to the nucleus, less shielded, they'll have fewer shells, and that's why there's going to be more attraction for electrons. ठीक है, so that's electronegativity. ठीक है, there's an entire table which is known as the Pauling scale table. अच्छा, और वो table जो है ना, that's this, ठीक है, I'll just copy. Pauling scale में ना, they've actually measured electronegativity values. तो अगर एक क्लियर टेबल, आई थिंक दिस इज गुड इनफ, ठीक है, इसी को ले लेते हैं साइज में। अगर बल्कि विजिट साइट, अच्छा, इसको कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, रिमेंबर दीज वैल्यूज विल बी गिवन टू यू। यूसुफ, क्या लिखी जा रहे हो?
अच्छा चले पॉलिंग स्केल वैल्यूज, ठीक है। पॉलिंग स्केल वैल्यूज जो है ना, दैट काइंड ऑफ टेल यू के हुज इंटरेस्टेड इन गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, हुज नॉट। तो जब आप राइट साइड पे जाते हो, तो एटम्स दे वो जो रेड होता जा रहा है, दैट जस्ट इंडिकेट्स दैट द एटम हैज अ stronger tendency to attract electrons. और इसी तरह when you move up the group, they become darker red, ठीक है, that indicates that they have a stronger tendency to actually attract electrons. अच्छा ये values measured हैं, ठीक है, so the most electronegative atom over here, that's fluorine over here, उसकी value जो है 3 point I think 3.98 है, ठीक है। Oxygen really likes to gain electrons, तो ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वो जो है वो that's अच्छा that's also given, तो वो 3.44 है, ठीक है, दैट्स वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, सो द एलिमेंट्स दैट आर इन दिस कॉर्नर आर वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, द एटम्स ऑन द अदर कॉर्नर, ठीक है, दे आर वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसके लिए एक ऑपोजिट वर्ड होता है, दैट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे आर द वंस दैट आर ऑलवेज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो राइट पे जाते रहोगे, दे आर गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा यहां से ना दिस वो ओ लेवल्स में ना द एलिमेंट्स आर गोइंग टू गेट डिवाइडेड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। द लेफ्ट साइड, ये वाली जो साइड है, दैट्स योर मेटल्स। Metals are the ones that like to lose electrons. On right side, that's your non-metals. The non-metals are the ones that are they're going to try and gain electrons. अब एक चीज याद रखना कि इसमें ना जो difference है ना between a metal and non-metal, that's kind of vague. Because it's a trend. ठीक है, the left side elements are going to be they are going to be metallic, और जो आपके right side वाले elements हैं they're going to be non-metallic, ठीक है। लेकिन it's going to be a trend. It's not going to be कि ये metal है तो वो non-metal है, ठीक है। जो रफ स्टेकेस थी ना ओ लेवल्स में, दैट वाज समवेयर अराउंड हियर, के दे सेड कि भाई बोरॉन जो है उसके इधर ना देयर इज अ स्टेकेस। जस्ट वन सेकेंड। अच्छा तो उन्होंने ना एक रफ स्टेकेस बनाई हुई थी, बट दैट वाज इन ओ लेवल्स, ठीक है। रिमेंबर देयर इज नो स्टेकेस एनी मोर, ठीक है, इट्स जस्ट अ वेग ब्लरी लाइन, ठीक है। So you can't really be sure whether it wants to gain electrons or whether something wants to lose electrons unless you look at the Pauling scale value, ठीक है। पॉलिंग स्केल वैल्यू जो है ना वो आपको बताएगा कि वो करना क्या चाहता है। तो अदरवाइज so you'll always be needing help from this, वरना ट्रेंड वाइज भी ना आप थोड़ा बहुत एस्टिमेट लगा सकते हो, ठीक है। लाइक if there is lithium and fluorine, you would know that fluorine is the one that likes to gain electrons। अच्छा ये तो पॉलिंग स्केल वैल्यूज होगी। नाउ बेस्ड ऑन दिस, द एलिमेंट्स आर गोइंग टू फॉर्म टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, दे गोइंग टू डू टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग अभी हम छोड़ देते हैं। uh, जो एलिमेंट्स है ना जो नॉर्मल लाइक इन कंपाउंड्स, ठीक है, तो कंपाउंड्स सर आप क्विकली डीएम्स दे सकते हैं सर? क्या, आप जल्दी से डीएम्स दे सकते हैं सर? डीएम क्या होता सर जी जो प्राइवेट मैसेज है। है, एक सेकेंड। नहीं तो मुझे सर जी व्हाट्सएप पे सर। हाँ हाँ। अच्छा कैमरा मेरे ख्याल से ऑफ है सारों का। जस्ट वन सेकेंड, ये देख लो किसी ने कैमरा तो नहीं ऑन किया हुआ। होल्ड ऑन वन सेकेंड, मैं सही कर रहा हूँ। अच्छा ये सब मेरी साइड पे तो नहीं है। सर जी हमारे साइड पे है। अच्छा मेरे पास वो सारे
बस ठीक है, मैंने हाँ, बंद। सर क्या हुआ? बस ठीक है, थैंक यू सर। चलो फिलहाल फिर कुछ हाँ नहीं होता यार, बस थोड़ा सा ठीक है, काम था। चलो ठीक है, हो गया सर। अच्छा सर, इस वन मैं उसकी प्रॉपर्टीज में जाके भी सही कर लेता हूँ। अच्छा, इसका इसका वो सिक्योरिटी ऑप्शन था, वो पता नहीं गायब हो गया। जस्ट सेकेंड। हाँ नहीं, पहले व्हाट्सएप के अंदर ना, इसके अंदर हाँ इन्होंने वो सिक्योरिटी वाला वो गायब ही कर दिया। चलो वो भी देखते हैं फिर। अच्छा एनीवे, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्लियर है सारा को? ये सब क्लियर है, असलान क्लियर है? यस सर, बिल्कुल। अच्छा चलो, अच्छा बेस्ड ऑन दिस, ठीक है, रिमेंबर कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में, ठीक है, जस्ट क्विक रिकैप कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में दिस जस्ट गोइंग बी अ ब्लरी लाइन, ठीक है। एक ट्रेंड होगा, metallic likes to lose electrons, non-metallic likes to gain electrons, but it depends on the electronegativity, it depends on the Pauling scale value, ठीक है। So based on this, you're going to have two types of bonding or two types of character. There's going to be covalent character and there's going to be ionic character, ठीक है, ये जिसको कहते हो ionic bonding कहते हो, ठीक है। तो and also remember कि the characters are not going to be like, nothing is 100% ionic, nothing is 100% covalent. There's probably just going to be a trend in this as well. कुछ चीजें जो होंगी, they'll be more covalent. अच्छा, a few things will be more covalent while other things will happen to be more ionic, ठीक है। So what decides whether something is going to be ionic or covalent? So what is going to decide is कि if I have two atoms X and Y, ठीक है, and if they have a huge difference in electronegativity, कि if there's a very large difference, अच्छा, if there's a very large difference in electronegativity, तो उसमें क्या होता है कि like for example, these two atoms could be you could have lithium and you could have fluorine. Fluorine जो है ना 3.98 है, that's very electronegative. Lithium is 0.98, that's very less electronegative. So if I have lithium and fluorine, for example, so what's going to happen is कि the fluorine is 3.98 and lithium was just 0.98. The fluorine has a much stronger attraction for electrons. So all the electrons are going to be gained by fluorine, okay? And lithium would end up losing electrons. Lithium will become +1 and your fluorine will become -1, and they're going to form ions and they will form an ionic bond, okay? So ये clear है कि when there's a large difference in electronegativity, the substance or the compound is going to be ionic क्योंकि one of the atom is going to end up gaining electrons. Is that clear? ठीक है, यस सर। यस सर। जी ठीक सर। ठीक है। और फिर उसका सब कुछ चेंज हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह एवरीथिंग वुड चेंज, ठीक है। दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन दैट लाइक इफ इट फॉर्म्स आयनिक तो इट्स गोइंग टू फॉर्म उसकी फिर प्रॉपर्टीज आयनिक की हम लिख लेते हैं सारी। इट्स गोइंग टू एंड अप फॉर्मिंग अ जायंट आयनिक लैटिस। तो जायंट आयनिक लैटिस क्या होगा कि इट्स गोइंग टू बी लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है, ऑल वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू ईच अदर। तो ये आपका ना, so the structure of the compound will be positive, negative ions, positive attracting negative, negative attracting positive. So it's going to form, इसकी properties लिख लेते हैं कि it's going to form giant ionic lattice. Or how do you describe a giant ionic lattice? It's a regular arrangement.
अच्छा, of positive and negative ions strongly attracted to each other with strong electrostatic forces of attraction. That's basically your ionic bond, ठीक है? अच्छा, और फिर इसकी properties वगैरह. Based on this, it's going to have certain properties, and those certain properties are going to be that it's going to have high melting and boiling points, क्योंकि it's going to form a crystal structure. So number one is it's going to have high melting points and boiling points, ठीक है? Why is it going to be high? उसकी भी reason वही है कि भाई there's strong attraction and it's a giant ionic lattice, ठीक है? तो बहुत सारे ionic bonds हैं. So it's got high melting and boiling points. अच्छा, the melting and boiling points are going to be even higher. वो जो ionic lattice की जो strength है ना, वो दो तीन चीजों पे डिपेंड करेगी. It will be proportional to the charge, and it's going to be inversely proportional to the ionic radius. यानी simple words में ना कि if I have two ionic lattices, so which one is going to be stronger, which one is going to be weaker, ठीक है? So let's say there's one, and let's say there's another one, ठीक है? ये दो आमने सामने. तो within ionic comparison, ठीक है? अच्छा, it's going to be a stronger ionic lattice if the charge on the ions is greater. ठीक है? Let's say in the other ionic lattice you have a charge के charge क्या होगा? +2 or -2 +2 ion -2 ion +2 ion -2 ion +2 attracting -2 ion and +2, right? तो जितना ज्यादा चार्ज होगा ना, the strength of the ionic lattice is going to be greater, ठीक है? तो it's directly proportional to the charge. The greater the charge on the ion, इसको बल्कि charge on the ion कर लो, ठीक है? उतना strong होगा. And inversely proportional to the ionic radius. Ionic radius का मतलब है कि जितने छोटे ions होंगे ना, the smaller the ions, the more tightly packed they're going to be, the closer they're going to be, which also leads to more attraction. So the smaller the ion, the stronger will be the ionic lattice, ठीक है? तो दो चीजों पे डिपेंड करती है strength. One is the size of the ion, and the other one is the charge on the ion. तो ये clear है? This is the one that's going to be a lot stronger, ठीक है? Is this clear? जी Yes, सर. sir. ठीक है. तो मुझे तो कि अगर मैं इस तरह का क्वेश्चन दूं कि मुझे तो कि इन दोनों में से which one is stronger? For example, NaCl and MgO. तो कौन स्ट्रॉन्गर है? सर MgO. ठीक है, MgO स्ट्रॉन्गर है. MgO, sir. और क्यों स्ट्रॉन्गर है? क्योंकि ऑब्वियसली वो आयंस के अंदर ना चार्ज ज्यादा है, सो it's going to lead to stronger attraction, right? ये Yes, क्या sir. सो दिस वन इज स्ट्रॉन्गर. और साइज भी छोटा है MgO का. साइज में खैर इतना साइज भी छोटा है क्योंकि Cl is much bigger in size. Cl has 3 shells while oxygen just has 2 shells. तो ये थोड़ा ज्यादा टाइटली पैक भी होगा, ठीक है? तो MgO is the one that's going to be stronger. और इस वाले केस में तो जमीन आसमान का फर्क है. अगर आप वैसे देखो ना, लाइक मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl, राइट? इवन दैट इज हाई. वो कितना आ रहा है? 800 आ रहा है, ठीक है? नाउ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ MgO, ठीक है, वो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब पहुंच गया. दैट्स क्लोज टू डायमंड, राइट? सो that's like really strong. अच्छा, तो एक प्रॉपर्टी तो होगी कि
they're going to have high melting and boiling points, and the strength of the ionic lattice depends on कि ion के ऊपर what is the charge on the ion and what is the ionic radius of the ion. अच्छा, second property which is क्या property होती थी और क्या होती थी? इतना तो पता होगा, ionic compounds की और क्या properties थी? सर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स वो कर लिए हाँ चलो ठीक है, वो soluble होते हैं एक तो पहले इन मोल्टन स्टेट molten और aqueous state में. अच्छा, जी सर soluble in पहले वो कर लेते हैं, soluble in water uh, to varying degrees. But they will kind of dissolve, ठीक है? तो अच्छा, so to varying degrees. अच्छा, what happens के process क्या होता है? They dissociate when you dissolve them in water. उसका क्या मतलब? उसका मतलब है कि और हर कोई थोड़ा बहुत डिसॉल्व करता है, ठीक है? ये नहीं कि some of them dissolve a lot while others are not going to be that soluble. खास तौर पे ना the lattices which are very strong, यानी इन दोनों में ना, the stronger lattices are less likely to dissolve क्योंकि वो इतना strongly आपस में bonded हो गए ना कि it would be kind of really difficult to dissolve them or dissociate them. So what happens is कि when you try to dissolve an ionic lattice, तो इस वाले को कर लेते हैं थोड़ा सा. अच्छा, so this is what's going to happen कि वो चम्मच लोगे, उसको ना बीच में डालोगे पानी में, and you'll start stirring, ठीक है? Now when you stir it, the ions they dissociate. All the ionic bonds are going to break क्योंकि you're stirring it with a spoon. So all of these ions, ठीक है, ये भी अलग हो जाएगा. This will eventually, I mean, you'll be vigorously stirring it. So all these ions are eventually going to dissociate, ठीक है? So for example, if this was NaCl, solid, if you mix it, so the sodium ions and the Cl ions scatter हो जाएंगे, ठीक है? They'll dissociate. You write it this way, ठीक है? तो उसके लिए क्या word use करते हैं? That they dissociate in aqueous state. अच्छा, and the reason they're not able to get back together again is कि क्या reason होती है उसमें? वो reason है कि there's going to be a lot of water molecules, ठीक है? That are going to come in the way. So it would be kind of so there'll be thousands, billions of water molecules that will be in between them, ठीक है? So they'll pretty much not be able to get back together again. Unless you do what? Unless you crystallize. ठीक है? How do you crystallize? के या तो आप सारा पानी ना एकदम से evaporate कर लो, right? But that will not allow crystals to form. क्योंकि it takes time for the ions to get back together again and to find that crystalline arrangement, ठीक है? So that requires time. So if you heat it very quickly, तो क्या होगा कि the ions just won't get enough time and crystals will not be able to form. So what you do is you heat it till वो क्या होता है? Crystallization क्या होता है? It's कि you evaporate the solution till crystallization point. वो इसका reverse होता है. तो evaporate solution till saturation point. And then you allow it to cool gradually. It takes time for crystals to form. So once crystals are formed, you filter them out.
ये भी O levels में कर सकते हो, एंड ड्राई इन सनलाइट, ठीक है, या जिसमें भी अवन के अंदर ड्राई कर लो, ठीक है. So that's crystallization. अच्छा, is this clear कि they are soluble in water? अब वो आखिरी जो पॉइंट था वो क्या था कि they're going to conduct electricity, right? So they're very good conductors of electricity. कब होते हैं कि when they're molten or aqueous. अच्छा, in molten or aqueous state. Why? Because of free moving ions. See, so we're done with properties of ionic compound. और तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये थी हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स थी. एक और प्रॉपर्टी है that they are brittle. मतलब हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के साथ ना you can also write they can form strong structures, right? ज्यादातर ionic compounds they are strong structures, ठीक है. अच्छा, they are strong but they can also be brittle as well. So we can do that property, which is के why do they tend to be brittle? तो वो इस साइड पे लिख लेते हैं. Even though they are very strong structures, but they tend to be brittle, ठीक है. और brittle का ये कि they're very sensitive to arrangement. Like you can't really change the arrangement. Once the arrangement is there, and if I pick this ionic lattice और इसको ना यहाँ पे रखो ना, तो रीजन आपकी जो टाइल्स वगैरह कंक्रीट वगैरह, व्हाई इज दैट ब्रिटल? आई मीन दे ऑल आयनिक लैटिसेस, ठीक है. नाउ द रीजन इट्स ब्रिटल इज के इफ यू अप्लाई अ फोर्स ऑन इट, तो अ सर्टेन फोर्स दे कैन रेजिस्ट फोर्स, ठीक है. कंक्रीट जो है दैट्स वेरी वेरी स्ट्रांग. आपकी जो टाइल्स वगैरह है वेरी स्ट्रांग, ठीक है. बट इफ अ फोर्स इज अप्लाइड, इफ इनफ फोर्स इज अप्लाइड एंड योर स्ट्रक्चर स्लाइटली गेट्स डिफॉर्म्ड, यानी ये जो है ना ये थोड़ा सा स्लाइड कर जाता है आगे, तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज कि आपके ना पॉजिटिव आयंस जो है ना दे आर कमिंग टुगेदर, ठीक है. योर पॉजिटिव आयंस are right next to each other, the negative ions are right next to each other. If that happens, that creates a force of repulsion. तो आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है ना दैट क्रैक्स, ठीक है. दैट्स व्हाई टाइल्स जो है ना दे गेट शैटर्ड. कंक्रीट जो है ना अर्थक्वेक के अंदर जस्ट क्रम्बल्स, ठीक है, because it can resist a certain force, but beyond a certain force, if the ions and the arrangement gets disturbed, तो the whole structure collapses. ठीक है, ये क्लियर है? जी सर. तो ये याद रखना कि बहुत स्ट्रांग होते हैं, but they also tend to be very very brittle as well. तो they're very sensitive to the arrangement. अच्छा, ये हमारा हो गया आयनिक कैरेक्टर, ठीक है, कि which is कि भाई अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है, if there's a very large difference in electronegativity, one atom is not electronegative and the other one is very electronegative, ठीक है. So one of the atom will gain electrons, form negative ions, the other one would end up losing electrons, form positive ions, and that's it, ठीक है. वो फिर वो पूरी आयनिक की कहानी शुरू हो जाएगी, ठीक है. अच्छा, but what is this very large difference in electronegativity? That large difference in electronegativity जो है ना वो greater than
और ये रिमेंबर ये भी अब रफ है, ठीक है, इट्स अ रफ एस्टिमेट, जितनी ज्यादा होगी ना उतना अच्छा है। तो बट फॉर आयनिक करेक्टर टू डोमिनेट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है ना, that has to be at least greater than 1.7, ठीक है। रिमेंबर 1.7 कोई हार्ड एंड फिक्स वैल्यू नहीं है, बट नॉर्मली एनीथिंग दैट्स अबव 1.7 you can say कि भाई उसका ना जो भी character properties वगैरह होंगी ना, they're going to be ionic, it's going to be forming ions, it's very likely going to be forming ions, ठीक है, अगर 1.7 से ज्यादा है। तो ये बात भी क्लियर है, ठीक है, सारों को क्लियर है, जी खदीजा सर। क्लियर है, बाकी और जासिर, यस सर। ठीक है सर। ठीक। तो इधर मैंने बताया कि कौन कौन आयनिक होगा, ठीक है। रिमेंबर 1.7 से जितना ज्यादा होगा ना डिफरेंस, द मोर आयनिक करेक्टर इट्स गोइंग टू हैव। सो सोडियम एंड लेट्स से सल्फर, सोडियम इज 0.93, सल्फर इज 2.58, तो क्या आ रही है वैल्यू, व्हाट्स द डिफरेंस, इज इट गोइंग टू बी आयनिक और कोवलेंट? सर कौन सा? सल्फर एंड सोडियम 0.93, ये सर टू, आयोनिक क्या आ रही है वैल्यू, क्या आ रही है वैसे? 0.93, सॉरी। नहीं, डिफरेंस 0.93 और 2.58 का डिफरेंस क्या आ रहा है? It's 1.6. कितना आ रहा है 1.6. इसका? 1.6 आ रहा है, और NaCl 1.65। एक सेकेंड 2.58 ही है ना? अच्छा 1.6 आ रहा है, इसका मतलब है ये सोडियम और सल्फर का जो कंपाउंड होगा ना, उसका मोस्ट लाइकली अब ये बॉर्डर लाइन से नीचे आ गया, ठीक है, इट्स लेस देन 1.7, इवन दो इट्स ग्रेट ना, इवन स्टिल इट्स ग्रेट, लेकिन 1.6 1.7 से तो नीचे है, तो इसका मतलब इट्स नॉट गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ आयनिक कैरेक्टर, उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगे ना, प्रॉब्ली गोइंग टू बी लेस आयोनिक। कोई और मुझे बता दो कि एल्यूमिनियम और Cl का क्या होगा? 1.6 ही है, 3.16 ही है, एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है ना, सर जी 1.45। वो और भी कम आ रहा है, इसका मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होगा, आयनिक होगा कि नहीं सर वो होगा? कोवलेंट होगा। हाँ, तो वो उसको वो देख लेते हैं, मैं वैसे उसका भी देख लेता हूँ। तो मेल्टिंग पॉइंट्स कोवलेंट के हमने वैसे पढ़े नहीं अभी, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट कोवलेंट के क्या होते हैं, लो होते हैं ना, तो यस। एल्यूमिनियम क्लोराइड की जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, दैट्स 180 सेंटीग्रेड, दैट्स लाइक वेरी लो। मैग्नीशियम ऑक्साइड देखा था 3000 पे पहुंचा हुआ था, ठीक है। सोडियम सल्फाइड जो है ना, वो बॉर्डर लाइन है, वो उसका वैसे देख लेते हैं, सोडियम सल्फाइड शायद आने को, मुझे नहीं पता, नहीं सोडियम सल्फाइड कोवलेंट है, वो देखा हमने निकाला था ना कि कोवलेंट है ना, 1.6 आ रहा था, इज दैट क्लियर? जी सर। जी जी सर। सर। अच्छा वो देखते हैं यप। कौन आयनिक, देखेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है, 1 सेकेंड, किधर गया? पोटेशियम और ब्रोमीन का बताओ क्या होगा? ब्रोमीन इज 2.96, पोटेशियम इज 0.82, तो ये 1.7 से ज्यादा है, वैसे ज्यादा ही लग रहा है, 0.82, और ब्रोमीन 2. 2.14. हाँ, तो बस ठीक है, 2 पोटेशियम, point. तो इसका मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड जो है ना, वो तो डेफिनेटली आयनिक होगा। अब वही कोवलेंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है, 700 है, ठीक है, तो आयनिक है, इज दैट क्लियर? जी तो सर। सर पॉलिंग स्केल का फायदा पता लगा कि आपको पता लगता था कि रिमेंबर 1.7 भी ना एक वेग बॉर्डर लाइन नंबर है, अ, लेकिन एनीथिंग दैट्स अबव 1.7 दैट्स डेफिनेटली डेफिनेटली आयनिक, ठीक है। अ, इसका बता दो कि कैल्शियम और ये तो डेफिनेटली आयनिक होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर कोई और कर लेते हैं, कैल्शियम आयोडाइड कर लेते हैं, वो भी आयनिक है, कैल्शियम 1 है, आयोडीन 2, 1.66 सर। 1.66 आएगा। अच्छा नहीं वो कम आ रहा है, देख लेते जी। हैं, जी कैल्शियम आयोडाइड, अब वो 1.66 1.7 बॉर्डर पे ही है, तो देख लेते हैं कैल्शियम आयोडाइड मेल्टिंग पॉइंट क्या आता है, आयनिक ही है वैसे, लेकिन बस वो 1.7 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1.7 को ना बहुत ज्यादा सीरियसली ना लेना,
लेकिन 1.7 से ऊपर अगर नंबर्स है ना तो वो तो डेफिनेटली कोवलेंट 1.66 1.7 के बिल्कुल करीब है ना। तो जस्ट रिमेम्बर कि ऐसे मैं कहता था 1.7 को बिल्कुल ही एक वो हार्ड नंबर ना लेना या हार्ड बॉर्डर ना उसको समझ लेना। 1.7 या 1.7 से ऊपर होगा ना तो या ये जैसा ये वाला केस है इवन क्लोज टू इट इवन दैट गेट्स अस आयोनिक। ठीक है, कोई थोड़ा इससे ये तो खैर डेफिनेटली डेफिनेटली ये क्या होगा मैग्नीशियम आयोडाइड ये कितना है? सर जी 1.35। 1.35. ठीक है, पहले ये कर लेते हैं बैरियम आयोडाइड। बैरियम आयोडाइड तो डेफिनेटली बहुत डिफरेंस है ना बैरियम आयोडीन का 0.8 Yes, it's है। like 1.27. ठीक है, वो तो आयनिक ही है। बाकी मेरे ख्याल से बॉर्डर लाइन नंबर्स जो है ना उनके ऊपर इतना ट्रस्ट ना करना। जो दूर दूर होंगे ना 1.7 से या तो बहुत कम होंगे 1.7 से ज्यादा होंगे उनके बारे में यू कैन प्रीटी मच टेल के वेदर इट्स गोइंग टू बी आयनिक और कोवलेंट। ठीक है, अच्छा चलो ये टाइम खत्म हो रहा है। ये क्लियर है दैट्स द फर्स्ट थिंग कि इफ द डिफरेंस इज लार्ज तो इट्स वेरी लाइकली द कंपाउंड इज गोइंग टू बी आयनिक एंड इट्स गोइंग टू शो ऑल दोस आयनिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये क्लियर है। जी सर ठीक है। जी सर। और अगर कम सर हो ये ग्रुप में सेंड कर सकता हूँ प्लीज? क्या नोट्स जी सर। ये मैं स्क्रीनशॉट असल में स्क्रीनशॉट लूंगा बहुत छोटी हो जाएगी। या तो इस पे ऐड हो मुझे मुझे भेजो ना और ठीक सर। उस पे है, ठीक है सर, हाँ फिर ठीक है सर, हाँ ठीक है, ठीक है सर, ओके। वन नोट में जाके ना वो देख ले मैं लिंक फिर भेज दूंगा। ठीक है, लिंक ही भेज देता हाँ हूँ। सर, हाँ फिर से भेजिए सर, थैंक यू। चल ठीक है, ओके, कल फिर ये करते हैं। ओके सर, ठीक है, अल्लाह हाफिज़ सर। ओके, अल्लाह हाफिज।